Greetings everyone. Myself Samriddhi Khattuar from Team Symposium VIIT. I welcome you all to another episode of SimMeet. SimMeet is a platform where we bring in people from various domains who have done great things or they have done something different in their life and pursue the idea of inspiring people through their life journeys. And one such personality is with us today, Mrs. Kiran Demla, and 45 years of age. She is a bodybuilder, a fitness trainer, a photographer, a mountaineer, as well as a disco jockey, that is a DJ, all at the same time. Ma'am, your journey has been very inspirational for a lot of people. Like at the age of 33, you discovered that blood clot and the way you recovered from those treatments and had a great transition in life. Then you set an example of being a fighter and not a warrior for all of us. So, to begin with today's interview, ma'am, I would like to know you have been all rounder, but what other hobbies do you have? Same. I love cooking. I I just want to be with my kids, and I just want to travel with them. I yeah, music is my hobby. Sports, so definitely I'm into sports. So these all are my hobby. Yeah, that's nice. And ma'am, you have trained some of the famous personalities. As personalities have always been somebody that the youth follows and admires. So can you share some experiences of sharing some of such personalities and stars? Yeah, I train Tamanna Bhatia, Anushka, Prabhas, and Rajamouli. So I train Bahubali team, and I had really good experience with them. Since 13 years, I'm training, and thank you so much, the South film industry, who gave me such lots of love and who they trust me that I can train them and I can take care of their health. So I had really amazing experience with them, and still I'm with them. And so yeah, it's a great experience. Yeah. So, ma'am, my next question is that how supportive was your family when you opted for such a unique and challenging thing? Like you had just recovered from those treatments and all, and suddenly thought of bodybuilding. So, how did your family react to this? Uh, Supportive, definitely. My kids and my husband was supportive, but it's still an Indian family. We have to, you can say we have to fight for our rights, and we have to fight for our, decisions. A woman, when she wants to take their own decisions, it's little difficult in Indian culture. Um, but I took that decision, my own few decisions, and they agree. And we are Indians, so हमारे Indian family में थोड़ा सा रूठना, मनाना, हंसना सब चलता है. और end of the Yeah. day उनको मना ही लेते हैं. And if you have trust on yourself, like अगर आपको अपने ऊपर belief है, trust है कि आप कुछ काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज से डरना चाहिए. एंड दैट्स हाउ आई हैव डन. इजी नहीं था, सपोर्टिव थे, बट स्टिल मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइफ बहुत इजी थी, बहुत रास्ता इजी था मेरे लिए. उन लोगों को मनाना या ऐसे बीच बीच में बहुत सारी चीजें आई मेरी लाइफ में, पर यस, मैंने कर लिया फाइनली. शायद मैं स्टबर्न हो गई थी थोड़ी, या उसे जिद कहेंगे, या किसी चीज का भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन कहीं मुझे ट्रस्ट था कि मैं कुछ कर जाऊंगी. सो दैट्स हाउ आई हैव डन इट. Ma'am, who is your role model and what has inspired you for choosing him or her as your role model? I am my own role. I am my role model only. I don't have any role model. Frankly speaking, I'm telling you. Because when I started journey in 2006, उस समय पे इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था और इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारा सारा टाइम तो सारा घर में, काम में, बच्चों में और सिर्फ अपने काम में जाता था. तो
रोल मॉडल्स और ये सब तब आते हैं जब हम थोड़ा सोशल मीडिया में देखें, घर घर से हटके शायद हमारा कहीं ध्यान जाए, तो तब जाकर हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन मेरा इतना नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ घर से जिम, जिम से घर और अपना काम, सिर्फ यही होता था। तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था मेरे पास, फोन भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी बिल्कुल। तो मैंने जो भी सीखा है अपने जीवन से खुद ही सीखा है, तो मैं खुद अपनी ही रोल मॉडल हूँ। तो यस। Yeah, that's really a great thing. Okay, ma'am, my next question is, when was the moment in life where you got the closest to giving up, and how did you deal with that situation? Give up? I don't think so. The moment I start my journey, uh, I ever thought about the giving up. मैंने कभी नहीं सोचा है। अप डाउन्स कम्स इन लाइफ डेफिनेटली। जब आप मदर बन जाते हो, और जब आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो अप डाउन्स तो डेफिनेटली आते हैं। पर मैंने उन्हें बैलेंस किया, उनको हैंडल किया, क्योंकि मुझे अपने जीवन में कुछ करना था। इसके लिए मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और जहाँ तक अपने आप को हमेशा मैंने मोटिवेटेड रखा है, और अच्छी अच्छी, और मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें देखती हूँ, अच्छे अच्छे स्पीकर सुनती हूँ। सोशल मीडिया और जो है वो आज इतनी इतना कुछ है उस पर देखने और सुनने के लिए, हम उसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो जितनी आप अच्छी चीजें देखोगे, जितनी अच्छी चीजें आप सुनोगे, उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे, अपना इन्वायरमेंट जितना अच्छा रखोगे। सो मुझे लगता है कि मैंने उस चीज को बहुत ही बैलेंस करके रखा है। मैं गिव अप शायद कभी भी, अगर मन में कुछ ऐसा आता भी है, थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, या थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता है कि नहीं अब नहीं कर पा रही हूँ, तो आई ऑलवेज वॉच द वीडियोस। मेरी बहुत आदत है, मैं यूट्यूब जाती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स के मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ, वर्कआउट के वीडियोस देखती हूँ। तो इस तरह से देख के मुझे अजीब सा मोटिवेशन आता है अंदर से। और दैट्स हाउ या आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, एंड आई नेवर थॉट अबाउट द गिविंग अप। Yeah. Ma'am, can you give some suggestions for today's generation? Like, younger people today, they give up onto one thing very easily. Like, ये नहीं हुआ तो मतलब थोड़ा बहुत they'll try, but then अगर कुछ time में if it doesn't work, then they give up very easily. Like, old people don't do like that. But today's नो, generation is very like फास्ट, सब कुछ फास्ट चाहिए आजकल, सबको सब कुछ फास्ट फास्ट yeah, चाहिए, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। पेशेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सारे बच्चों को, आजकल की जो जनरेशन है, यूथ, उनको सभी सबको कहूंगी कि नथिंग कम्स इजीली। सब कुछ इजीली नहीं आ जाता है, चाहे कितना भी हमारा टेक्निक्स फास्ट हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो। लेकिन आपको अगर पेशेंस नहीं है अपनी लाइफ में, तो शायद बहुत सारी चीजों के पीछे रह जाओगे आप। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए, अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा। उस तरह से ही हम पॉजिटिव रह सकते हैं। उसकी कोई मेडिसिन नहीं आती है कि आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो आप मेडिसिन लो तो पॉजिटिव हो जाओगे। हम सबके अलग अलग तरीके होते हैं अपने आप को डेली मोटिवेट रखने के, या डेली पॉजिटिव रहने के, कि हम ऐसे इन्वायरमेंट अपना ऐसा बनाएं कि जिससे, जैसे मैं हूँ, मेरे आसपास कोई ऐसे लोग नहीं है, ना मैं ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने देती हूँ जो नेगेटिव हों या जो इस तरह की बातें करते हों। ज्यादा फोन पे बात करना, या ज्यादा चिट चैट करना, या ज्यादा फ्रेंड्स के साथ रहना, और सबसे पहली बात तो एनीवे मैं मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है फोन पे बात करना और ज्यादा मैसेजेस का जवाब देना, या कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो ठीक है। तो आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया है, फोन ऐसी चीज है कि आधे से ज्यादा टाइम सब लोग फोन पे ही रहते हैं। मतलब जिंदगी ही सोशल मीडिया हो गई है, जिंदगी ही फोन हो गया है। ऐसा पल नहीं आता है कि कभी थोड़ी देर फोन बंद करके एक ठंडी हवा में आप बैठ जाओ, एक मेडिटेशन करो, और छोटे अपने जो दिमाग से है उसको सोचो कि क्या करना है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, फोन साइड से छोड़ देते हैं, कि फोन जो होता है ना, बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। आप पहले तो फोन नहीं हुआ करते थे, अब तो फोन ऐसा हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, फोन अगर नहीं हो तो इंसान जी ही ना पाए बिल्कुल। तो इसी से ही जिंदगी शुरू और खत्म हो जाती है वहीं पे। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को थोड़ा सा
थोड़ा एक बांध के रखना चाहिए कि सारा दिन फोन जो हम हाथ में पकड़े रहते हैं, थोड़ा एक टाइम ऐसा बना के रखिए, एक आधा घंटा ही मैं कहती हूँ, फोन को बिल्कुल साइड से रख दीजिए, एक मेडिटेशन करिए, दिमाग से सोचिए। आप जितना मेडिटेट करोगे माइंड पॉजिटिव रहेगा। तो सोशल मीडिया में हम एक्चुअली देखा जाए तो हम अपनी वजह से परेशान नहीं होते हैं, हम परेशान होते हैं दूसरों की वजह से। हमको सब कुछ अच्छा है ना, हमको बॉडी अच्छा है, या हमको भगवान ने सब कुछ तो अच्छा दिया है, लेकिन हम आसपास के लोग, जो उस दोस्त ने क्या कहा, उसका क्या होगा, उसका जॉब कैसा है, उसको बहुत ज्यादा सैलरी मिलता है, या उसका ये ऐसा है, उसकी ये चीज ज्यादा अच्छी है। आप ये सोचो कि आपके पास क्या अच्छा है। क्या आपके पास ये अच्छा नहीं है कि आप चल पा रहे हो, दो हाथ दो पैर, एक दिमाग दिया है भगवान ने, जब आप सुबह उठते हो तो सर के ऊपर एक छत होती है जहां आप सुकून से सो पा रहे हो। क्या ये इनफ नहीं है जीवन के लिए? भगवान जब हमें जिंदगी देता है तो कहता है कि अब मैंने तुम्हें भेजा है, अब आगे तुम्हारा काम है, मैं साथ में रहूंगा लेकिन बढ़ना तुम्हारा काम है। लेकिन बच्चे यही भूल जाते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है कि भगवान से हर दिन शुक्र करना चाहिए कि भगवान ये जो आपने इतना दिया है ये भी बहुत है। कम से कम ऐसी नौबत तो नहीं है कि हम एक दिन कमाएंगे 10 रुपए और उसी दिन खाएंगे और दूसरे दिन फिर सोचना पड़ेगा खाने के लिए। तो कम से कम जो आपके पास है, सबसे बड़ा जो वेपन होता है ना हमारे पास, इंसानों के पास, होता है हमारा दिमाग। और हम अगर दिमाग अगर बराबर चलाएंगे तो हमारे हाथ पैर सब कुछ बराबर चलेंगे। काम करने के लिए है ना ये सब, तो इनको चलाओ अच्छी तरह से। तो मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है उसको ये चीज बहुत ध्यान रखने की है। भागदौड़ की दुनिया है बहुत। अब पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, अच्छे इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना है, और मेडिटेशन करना है। काफी लोग सोचते हैं मेडिटेशन तो बूढ़े लोग करते हैं, मेडिटेशन तो ओल्ड लोग करते हैं, हम लोग यंग लोग ये सब नहीं। ये बहुत गलत बात है। आजकल इतना सारा स्ट्रेस हो गया है लाइफ में। आजकल बच्चे बस 10th 11th 12th खत्म होता है और सबका जॉब का चालू हो जाता है कि सबको अपने अपने करियर चूज करने। वो अच्छी बात है, लेकिन उससे स्ट्रेस कितना हो जाता है बच्चों को। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा। भागना नहीं है जीवन में, भागना नहीं है, जीवन को जीना है प्यार से, ब्यूटीफुली उसे एक एंजॉय करना है लाइफ को। सो या दिस इज माय मैसेज टू ऑल यूथ। Yeah, that's very true, ma'am. Ma'am, I would like to know your future goals or some of your future projects that you're working on currently that you could reveal. एज ऑफ नाउ आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन ट्रेनिंग। पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने इतना चालू नहीं किया था क्योंकि I was busy with my celebrities, with travel and my DJing, क्योंकि उसमें इतना travel करना पड़ता है। But now, because of quarantine and this pandemic, I thought I should start the training because around the people wants to train with me. जैसे सब लोग प्रोफाइल देखते हैं और सब देखते हैं। And 3 4 months before I start training, and today I'm packed with training and I'm training around the world people. और ये अब मेरा कभी भी बंद नहीं होगा। काफी लोग पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ क्वारंटाइन या पैंडेमिक के लिए है ऑनलाइन का? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये अब हमेशा ही बंधा रहेगा जब तक मैं हूँ इस दुनिया में। बिकॉज मैंने जो इतना चेंज देखा है, इतनी तरह तरह के लोगों से बात करना और सब, तो उनको ट्रेन करती हूँ। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं लोगों को एक अच्छी हेल्प दे रही हूँ, वो विश्वास करते हैं मेरे ऊपर। और एक ही चीज बोलूंगी, 10 में से 10 लोगों को हम खुश नहीं कर सकते हैं जब हम बाहर काम करने निकलते हैं। कम से कम 7 या 8 लोगों को भी खुश कर देते हैं तो इनफ हो जाता है। बाकी मेरे कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इट्स गोइंग सो वेल, टच वुड। एंड 2021 और 22 में मेरे कुछ फ्यूचर में प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ऑलरेडी आई साइन द प्रोजेक्ट अग्रीमेंट। आई कांट रिवील, बट यस, that will be bang on, and the world will get to know about the Kiran Demla. So I'm just excited कि जब वो project आएगा, तो hopefully cross the fingers. It was so great having you with us for today, ma'am. We really got to learn many things, and as I've been always saying, that you are an inspiration to many people. You're truly an amazing personality, ma'am. Thank you so much for being there with us today. With this, we conclude our today's Sim Meet session. Thank you so much. Thank you so much, Samriti. It's all my pleasure. Yeah.